शक्ति क्या है राम तेरी, आ तुझे दिखलाता हूँ। जय शंकर जय शंकर जय शंकर। मनमोहन घनश्याम तू है, ईश्वर राम तू है। मनमोहन घनश्याम तू है, ईश्वर राम तू है। उस मालिक दा नाम तू है, जो सबना दिल विच वसदा। कृष्णा तेरी मुरली ते बलवान नचदा। कृष्णा तेरी मुरली ते बलवान नचदा। मानो मानो तीनों लोगों के जस्ट उसमें समा गए हैं। महाराज, आप शत्रुओं में अजीत करके युद्ध करो। इसलिए हमने आठों दिशाओं में राक्षस जाति को इकट्ठा करने के लिए दूतों को भेज दिया है। महाराज, आपको राक्षसों को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि आपका परम शक्तिशाली विजय अयोध्या भाई कुंभकर्ण तुम्हारे ही घर में सोया हुआ है। आज यही अवसर है, उसे जगा दीजिए और वानर सेना के लिए मैं अकेला ही काफी है। आश्चर्य की बात है प्रश्न, जो अभी तक हमारी समझ में नहीं आया था। प्रश्न, तुमने तो हमारी समस्या का समाधान ही कर दिया। वीर पक्ष, कुंभकर्ण के शयन कक्ष में जाओ और उसे निद्रा से उठाओ। अशोक चौधरी जी, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਡਰਾਮਾਟਿਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੇ ਨਵੇਂ ਸੀਨ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਸੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸੀਨ ਦਿਖਾਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 41 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੈਂ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਬੈਸਟ ਰਾਵਣ ਉਹ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 41 ਸਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ? ਬਸ ਸਾਰੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲੇ ਦਾ ਔਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਤਲਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਮਟ 'ਚ। ਟੇਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਏਜ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੰਨੀ ਏਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ।
ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਸਟੈਮਿਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਫਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ। ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਹਾਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੱਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਫਟਰ ਹੈ, ਲਾਫਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬੋਡੀ ਸਟੈਮਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ये धरती थर थर कांपती है जिस समय मैं रण में आता हूँ। ये सारी सृष्टि डरती है जब ऊपर नजर ले जाता हूँ। ऐ काल को मैंने बांध रखा, किसी से भय नहीं खाता हूँ। शक्ति क्या है राम तेरी, आ तुझे दिखलाता हूँ। जय शंकर जय शंकर जय शंकर। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ जय श्री राम जय शंकर। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਧੀਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਾਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਨਿਸਵਾਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। उठिए महाराज, महाराज, महाराज उठिए, महाराज। महाराज
समय से पहले तुम्हें हमने जगाने का साहस कैसे किया? लंकापति रावण तो कुशल से है। महाराज रावण कुशल अपने महलों में विराजमान है। तो फिर क्या है ये? लंका में कोई विपदा तो नहीं आई? अभी तक तो नहीं महाराज। लंका पूरी तरह सुरक्षित है। परंतु अब उसकी सुरक्षा संकट में है महाराज। सुग्रीव की वानर सेना ने चारों ओर से हमें घेर लिया है महाराज। और क्यों? मानव राज बाली से तो हमारे संबंध अच्छे थे और संधि भी थी। महाराज बाली मारा जा चुका है। अयोध्या के दशम नंदन राम लंका को घेर लिया है महाराज। एक अगले बात तुम भैया रावण से कहो कि मैं उससे आकर मिलता हूँ। जो आज्ञा महाराज। इसलिए हमने अभी तक उसको युद्ध में नहीं भेजा है। क्या आप स्वयं युद्ध भूमि में गए थे? हाँ, जब भ्रष्ट और राक्षस भी मारे गए तब हमने सोच लिया था कि शत्रु ऐसे योद्धाओं के वश में आने वाला नहीं है। युद्ध लंबा होता जाएगा और लंका वासियों का मनोबल दिन प्रतिदिन मंद होता जाएगा। इसलिए हमने निश्चय कर लिया है, हम स्वयं जाकर एक बार उन शत्रुओं का नाश कर दें, क्योंकि शत्रु इतना निर्बल नहीं है जितना हमने सोचा था। उसने हमारे समस्त शत्रुओं को काट कर हमें रक्षा कर दिया। और सबसे बड़ी चोट उसने हमें तब पहुंचाई जब उसने इस अवस्था में हमारा कत्ल नहीं किया। युद्ध में मरने से हमारी वीरता का दाग नहीं लगता, परंतु उसने हमें अपमानित करके वापिस भेज दिया। आज सारा संसार हम पर हंस रहा होगा। यहाँ तक कि सीता भी हमारा उपवास कर रही होगी। हम कौन से गौरव के अहंकार को लेकर उसके सामने जाएंगे? कुंभकर्ण मेरे भाई, इसलिए तुम्हारा युद्ध भूमि में जाना उन मानवों और बानरों का पक्ष करना अवश्य होगा। अब राक्षस जाति की दाल तुम्हारे हाथ में है मेरे भाई, तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें रावण के अपमान का बदला उनके
उनके राम और लक्ष्मण के सभी साथियों से लेना होगा। रावण तीनों लोगों का विजेता, उसके आगे शस्त्रहीन, दृष्टिहीन, मानहीन, उस पर भी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। हमारे दुश्मन को श्रीमंत हो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रभाव अलोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोगों के स्वामी हैं वह श्री राम नारायण है। उन्हें श्री राम कहना अवश्य पड़ेगा। दादा जी, शायद आप ये भूल गए कि श्री राम की कई पीढ़ियां जब वो इक्ष्वाकुवंश के राजा थे, उनको श्राप दिया था कि श्री राम नारायण तुम्हारे कुल में स्वयं अवतार लेंगे और मानव रूप में आपका विनाश करेंगे। वो बात ही भूल गया। रावण, जो नारद ने बात मुझे बताई कि विष्णु राक्षसों का नाश करने के लिए स्वयं और अपनी दशरथ के घर में जन्म लेंगे, वो ब्रह्म की बात ही भूल गए। महारानी सीता का हरण करना है, वो स्वयं विष्णु का अवतार है। रावण विष्णु का अवतार है। तो क्या हम अपनी बहन की अपमान का पता ना लेते? अपने भाई के वध का प्रतिशोध ना लेते? तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? हाँ, तो उसको उस कार्य की विरोध की भांति करते, कायरों की भांति स्त्री का हरण करके चोरों की तरफ भाग आना, ये शोभा नहीं देता। रावण, मेरी भी तो बहन दुर्मता थी। आज मुझे जिस प्रकार उठाया, उस दिन नीच कार्य करने से पहले अगर मुझे जगाया होता तो मैं अवश्य प्रतिशोध देता। रावण, अवश्य प्रतिशोध देता। राजा के लिए उचित ये नहीं कि अवश्य ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपना पूरा विद्वान और सत्य हताशी मित्रों कर्मों का सही करे। राजा के चरण को उस प्रवासी मंत्रों के बातों में नहीं आना चाहिए। रावण, जो अपना निजी हित अपने स्वार्थ के लिए आपकी प्रशंसा करते हो, जो अपने देश को बेच देते हैं। भाई कुंभकर्ण, ये समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। हर बात अपने समय पर ठीक लगती है। भैया, यही तो मैं कहना चाहता था कि आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है कि पुरुष को धर्म अर्थ के काम के हिसाब से उचित समय पर करना चाहिए। जैसे प्रातःकाल धर्म का, मध्यकाल में सेवन अर्थ का और रात्रि काल में काम सेवन का। इन तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। अतः जहां अर्थ और काम धर्म के विरुद्ध हो, वहां उन दोनों की उपेक्षा करके धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। रावण, सीता का हरण करते समय
आपने धर्म और अधर्म की बात कही। रावण, भाभी मंदोदरी और भाई भीषण की नीति और धन की बातें नहीं सुनी आपने। केवल अपनी काम वासना के लिए आप उस परिस्थिति का हरण कर लाए। ये उसी का फल है भैया, जो सारे संसार में धर्म का वासी भोग रहे हैं। एक गुरु या आचार्य की भांति हमें तुम्हारा उपदेश सुनना नहीं है कुंभकर्ण। हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय संकट का है। इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है वही बात करो। मान लिया कि हमने नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया कि हमने जिसके मुंह में स्त्री का हरण किया, मान लिया कि हमने गौरव और अहंकार में किसका प्रबंध नहीं सुना। लेकिन इन बातों की चर्चा करने के इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा कुंभकर्ण, इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। तो ठीक क्या? बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। भविष्य की चिंता कर्म योग्य नहीं करते। इस समय इस क्षण क्या करना है, इसी उसका निश्चय अवश्य हो जाता है। अब तुम निश्चय कर लो कि तुम्हारा अपनी जाति के प्रति, अपने भाई के प्रति कुछ कर्तव्य है या नहीं। और तुम हमें शास्त्र सुना रहे हो। शास्त्र में यह भी लिखा है, यदि भाई से कोई पाप हो भी गया है तो अपराधी है, तो उसका संकट में साथ हो, वही भाई कहलाने होता है। अपराधी को तो सजा सभी दे सकते हैं, भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे, कुछ शिक्षा न दे। सोच लो, रावण के काम ही सही, रावण के साथ इस राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? यह तर्क विरक्त का समय नहीं है। क्या मन में कोई शंका है? यदि कर्तव्य का पथ साफ दिखाई नहीं देता तो युद्ध में जाने से कोई लाभ नहीं। कुंभकर्ण, जाओ और जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शान के साथ जीना दोनों आते हैं। कुंभकर्ण, दोनों आते हैं। जाओ कुंभकर्ण, जाओ। भैया, आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा नहीं। मैंने जो कहा वह एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा। वह मेरा अधिकार भी था और कर्तव्य भी। इस समय मुझे क्या करना है उसको लेकर मेरे मन में कोई संशय नहीं और ना ही मेरे मन में कोई अंधकार। मैं आपका छोटा भाई और छोटे भाई का एक ही धर्म होता है। जब तक मैं जीवित हूं तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं आ सकता।
छोटा भाई मित्र भी होता है और सेवक भी होता है। राक्षस जाति को आप पर गर्व है लंकेश, आप तो राक्षस जाति के नायक। भैया अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त होने से पहले और बनवासी राम और लक्ष्मण के सिरों को काटकर खोपड़े मारता हुआ लंका में हाथ से जन्म में डाल दूंगा। आज रात लंका में विजय का उत्सव होगा भैया, विजय का उत्सव। परंतु क्या? परंतु भैया यदि उनकी सब बात सच निकली तो वो सचमुच नारायण हुए, तो मैं भी पीठ नहीं दिखाऊंगा अपने भाई के लिए और लंका की आग के लिए। युद्ध में लड़ते हुए मर जाऊंगा भैया, लेकिन आपको वचन है तुम मुखरा कभी पीठ नहीं दिखाना भैया, ये मेरा आपको वचन। कुंभकर्ण, मृत्यु की बात मन में क्यों ला रहे हो? तुम अवश्य ही विजय होगे। हम सेना नायक को आदेश देते हैं तुम्हारे साथ जाने के लिए सतरंगी सेना तैयार की जाए। कोई जरूरत नहीं, मुझे सेना की कोई जरूरत नहीं, मैं रणभूमि में अकेला ही जाऊंगा। मेरे हाथ में केवल शिव शंकर जी का त्रिशूल होगा, उनकी आधी सेना तो मेरे पांव के नीचे ही उतर जाएगी भैया। मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मेरे कारण आपका गौरव और आप हमेशा खुश रहे। भैया मेरी एक और प्रार्थना। तो क्या कहना चाहते हो? भैया यदि मैं रणभूमि में मारा गया तो समझ लेना, तो फिर उनसे कोई नहीं जीत सकता। तो अब श्री राम को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाना, जिससे कि हमारा कुल नष्ट होने से बच जाए और आपका संकट हो जाए। प्राणी जब अपने प्राणजनों के साथ बैठकर ऐश्वर्य भोगता है तभी वो प्रसन्न और संतुष्ट हो जाता है। यदि तुम जैसे भाई नहीं रहे तो तीनों लोकों का साम्राज्य रावण के लिए किस काम का भैया? भाइयों के बेटे अपने बेटे मरवाकर रावण कैसे ऐश्वर्य भोग सकता है? तुम कर जाओ और मृत्यु की बात मत करो, युद्ध की बात करो, केवल युद्ध की बात करो और युद्ध में विजय की बात करो। भैया मुझे आशीर्वाद दो।